Please subscribe my channel and also press the bell icon. Assalamu alaikum to all of you. I am from High School Shanu, Zone Mawar District Kupwara. आज का लेसन जो मैंने चुन लिया है वो 9th क्लास के लिए है, मैथमेटिक्स। मुझे उम्मीद है कि तकरीबन तमाम बच्चों ने पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए होंगे। अब मैं 5th चैप्टर की तरफ जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, 5.1, 5.2 एंड 5.3, and there are 9 theorems in this chapter. Today's my topic is pairs of angles. आज का जो फोकस रहेगा वो pairs of angles पर रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 6th से 8th तक जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। तो हम देखते हैं कि जब हम 6th के किताब को देखते हैं तो शुरू पॉइंट से होता है। अगर हम पॉइंट की बात करें, ज्यादा डिस्कशन में नहीं देना चाहता हूं इसके बारे में, क्योंकि ये अगर आज का दौर देखेंगे तो ये अनडिफाइंड है। जिस तरह जीरो से हम किसी नंबर को तकसीम करने जा रहे हैं तो अनडिफाइंड लिखते हैं हम मैथमेटिक्स में, इसी तरह हम पॉइंट को भी अनडिफाइंड ही कहते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 6th क्लास में लिखा है कि पॉइंट इज अ लोकेशन और इट इज ए पोजिशन, बट दिस पॉइंट हैज नो साइज। इट मीन्स इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेडथ और नो दिस डीपनेस। And on the other words, I can say here that it is the fundamental object of geometry, fundamental object of geometry. So it is point. So when we go towards this line, we can see that we draw lines when we produce both the sides. This is called a line. The symbol of this line is AB, and we draw a line this as this by arrows, and this is line segment. The part of this line is called line segment. Part of this line, जब हम इस लाइन का एक टुकड़ा लेंगे, say this piece of line is called a line segment. It's called line segment. Ray, this ray is started from when we open a torch. When we open a torch, जब हम किसी टॉर्च को ऑन करते हैं तो ये रेज जो है वो एक पॉइंट से निकलकर आगे जाती हैं। इनको रेज कहते हैं, जिनका ओरिजिनेट एक ही पॉइंट है। तो ये जो हमने बेसिक पॉइंट्स इन क्लास में पढ़े हैं। इसके आगे जब हम जाते हैं तो एंगल की तरफ जाते हैं। जब हम दो रेज को मिलाते हैं, व्हेन टू रेज मीट और व्हेन टू रेज व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम a single point, from a common point, they make an angle. So the angle is formed when two rays originated. Two rays originated from the same point, from the same end point. We will call it our initial point. It is same end point. This point is called vertex. This point is called vertex. And these two arms, these two rays are called arms of an angle. जो यहाँ पर ये जगह बनती है, यहाँ पर ये एंगल बनता है। आज के 9th क्लास में अगर हम ये एलॉबरेट करना चाहेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 एंगल बनते हैं। अंदर से जो एंगल बनता है ये एक एंगल है और बाहर से भी एक एंगल बनते हैं 9th क्लास की। तो उसमें एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, जो उसने ज्योमेट्री दी है उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री हम कहते हैं। इसकी एक किताब भी है, बुक भी है, जिसको एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। उस एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री में लिस्ट ऑफ 23 डेफिनेशन दिया हुआ है। और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि दिस यूक्लिड हैज deduced 465 theorems. These theorems are also called laws because they are unchangeable. They are not changed. These theorems are also called propositions. In these texts, these are also given postulates, axioms, theorems, and definitions.
Some of the definition about this point, line, and plane, which are given in this text by this Euclid, are that a point is that which has no part. This no part means it has no length, no breadth, or no other thing. And a line is defined by Euclid. Is line is a breadthless length, so it has no breadth, it is only length, it has only length. And a plane is that which has length and breadth. On the other words, इसने ये भी कहा है कि solid जो है, solid has 3 dimensions and this plane has 2 dimensions. A line has 1 dimension and a point has none. I again repeat this point, that solid has 3 dimensions, plane has 2 dimensions and line has 1 dimension. This point has none. यानी इसका कोई dimension नहीं है, न length है, न breadth है और न कुछ है. तो इसके आगे हम देखेंगे कि टाइप्स की एंगल्स की तरफ आते हैं. हमने पिछले क्लासों में भी पढ़े हैं और आज भी हमें ये रिपीट करना है. टाइप्स ऑफ एंगल्स: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, obtuse angle, straight angle, reflex angle, and complete angle. This acute angle is less than 90 degree and this right angle is equal to 90 degree. Obtuse angle is 90 degree less than x less than 180. It means that this angle is between 90 degree and 180 degree. Straight angle is equal to 180 degree and reflex angle is 180 x less than 360. It also means that these angles are between 180 degree and 360 degree. When the angle becomes equal to 360 degree, it is called a complete angle. Next we go towards the pures of angles, जो हमारा आज का असली टॉपिक है. अब मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ. pures of angles, हमें कितने pures of, अगर आप गौर से देखेंगे एक एक करके हम देखेंगे तकरीबन 10 kinds are here which are called these pures of angles. दो एंगल बनते हैं तो इनका नाम दिया है, इनकी डिग्रीज क्या बनती हैं. मैं इसके आगे वही जब हम pures of angles का फर्स्ट जो टाइप है देखते हैं तो adjacent angle आता है. adjacent angle क्या होता है? when a ray stands on a line, पहले हम लाइन को ड्रा करेंगे. अगर इस पर एक रे डालेंगे ऐसे, तो जो ये 2 एंगल बनते हैं, ये 2 एंगल इनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल होगा, इसको अंदर से एक लाइन लगाएंगे, इन 2 को भी हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं. अगर ऐसे पहले राइट एंगल होगा, इसके अंदर से किसी जगह लाइन लगाएंगे, ये 2 भी एडजेसेंट होंगे. और अगर obtuse एंगल पहले होगा तो इसमें से लाइन आएगी दरमियान में से, तो ये 2 भी एडजेसेंट एंगल होंगे. जब ये स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट 180 डिग्री के बराबर होगा, इस पर हम 3 तरह से लाइन लगा सकते हैं. ऐसे एक लाइन लगाएंगे, इधर बनाएंगे यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं. इस पर ऐसे लाइन लगाएंगे. इससे हमें क्या मिलेगा? यानी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं इस एडजेसेंट एंगल्स की. व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स हैव? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इनका ये वर्टेक्स जो है कॉमन होता है, और जो ये आर्म्स है, एक आर्म उनकी कॉमन होती है. जो 2 अदर these 2 arms are opposite to this, or opposite this middle arm. This arm is common. In this condition, these angles are called adjacent angles. This adjacent angles, these 2 adjacent angles, they form an acute angle again. When these 2 adjacent angles, the sum of these 2 adjacent angles is 90 degree, and the sum of these 2 adjacent angles, they form 180 degree. When the sum goes towards this 90 degree, when the sum of these 2 angles is 90 degree, these 2 angles are called complementary angles. Next type of pairs of angles. Second point, complementary angles. Complementary angles. Complementary angles. These complementary angles are those 2 adjacent angles whose sum is 90 degree, and
when the sum of these two angles, these adjacent angles 180 degree, then the third type of this adjacent this type of pair of angle is formed, that is called a linear pair of angle. Linear pair of angles. Linear pair of angles. When the sum of two adjacent angles is 180 degree, this pair of angles is called a linear pair of angles. Again, also this linear pair of angles are also called as supplementary angles. Supplementary angles. When the sum of two angles, supplementary angles. Supplementary angles are those when the sum of two angles is 180 degree. There is one point. What is difference between linear pair of angle and supplementary angle? The sum of two adjacent angles when become 180, they are called a linear pair of angles, and we can also say that the sum of two angles when it is equal to 180, we are called also supplementary angles. What is difference between these two angles? What is difference between these two angles? We see this. मेरे ज़हन के मुताबिक जब तक मैंने पढ़ा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट जरूरी होनी चाहिए. यानी जो एडजेसेंट एंगल्स हम बनाते हैं, चाहे इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर एक एंगल एक्यूट आएगा और दूसरा ओब्ट्यूस आएगा, या इस तरह बनाएंगे तो ये दोनों एंगल राइट एंगल आएंगे, फिर भी ये लीनियर पेयर है. और या इस तरह बनाएंगे, यहाँ का एंगल एक्यूट होगा और यहाँ का ओब्ट्यूस होगा, तो सम ए 180 के बराबर होगा. इन सब एंगल्स में ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. लेकिन इन सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनको सप्लीमेंट्री भी हम कह सकते हैं. लेकिन मेरे पास सिर्फ एक मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इनको अलग अलग भी बना सकते हैं. जैसे ये एंगल अगर हम लेंगे, इसका ये डिग्री अगर हम 60 लेंगे तो इसका 120, इनको हम अलग बना सकते हैं. 60 डिग्री एंगल यहाँ अलहदा बनाएंगे और ये 120 डिग्री का एंगल जो है वो अलहदा बनाएंगे. इन दो को भी इकट्ठे हम we say that these two angles are supplementary angles. यानी इनको हम अलहदा बना सकते हैं, इनको भी हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, लेकिन इनको लीनियर पेयर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर एडजस्टेंट एंगल होना चाहिए. ये इनमें डिफरेंस है. और एक बात है यहाँ पर जो हमारी किताबों में आता है, कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट. सप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट. अगर कंप्लीमेंट हमें देखना है, किताब में अगर दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन होगा कि 40 डिग्री का कंप्लीमेंट लिखे तो हमें 50 लिखना है, क्योंकि सम 90 डिग्री होना चाहिए. कंप्लीमेंट में दो एंगलों का जो ये एड है, सम है, वो 90 डिग्री होना चाहिए. अगर 40 डिग्री दिया हुआ होगा तो हमें 50 डिग्री लिखना है. अगर ये 70 डिग्री होगा तो क्या लिखेंगे, 20 डिग्री लिखेंगे, तो सम 90 डिग्री बनेगा. ये कंप्लीमेंट है. यानी 40 का कंप्लीमेंट 50 है और 70 का कंप्लीमेंट 20 है, या 10 डिग्री का कंप्लीमेंट जो है वो 80 डिग्री है, क्योंकि सम हमें निकालना है 90 डिग्री. इसी तरह अगर हम कंप्लीमेंट देखेंगे, कंप्लीमेंट हमें पहले ये याद रखना है, ये टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. जब हम एक एंगल अगर हम लेंगे, एक वन एंगल इज 100 डिग्री, सो दैट इट इज सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री. अगर हम इस एंगल को से दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, द नेक्स्ट एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. The sum of these two angles is 180 degree. These are called supplement or complement. जो इनमें से दिया होगा दो में से, तो हम इसका जवाब ऐसे ही लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट लिखना होगा या सप्लीमेंट लिखना होगा. ये दो जो इसकी डिफरेंस है इतनी है. और इसके आगे जब हम जाते हैं तो हम दो लाइन्स ड्रा करते हैं. दो लाइन्स हम किस तरह ड्रा करते हैं, मेरे हिसाब से 3 तरीकों से ड्रा करते हैं. एक तो कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स. जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो हाउ मेनी एंगल्स कैन मेड हियर? देयर आर 4 एंगल्स एट दिस पॉइंट. तो जो ये क्रॉस में यहाँ पर एंगल बनते हैं, यहाँ पर ऊपर से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से. अगर ऐसा ही बनाऊंगा मैं दोबारा, तो यहाँ का एंगल मैं लूंगा इस कोने का और ये एंगल लूंगा, तो ये जो एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट पेयर, इट इज द फोर्थ पेयर. पहले हमने एडजेसेंट पढ़ा है,
दूसरा कंप्लीमेंट, तीसरा सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर। ये फिफ्थ टाइप है, फिफ्थ टाइप। दिस टाइप इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, vertical opposite angles. These angles are made when two lines intersect each other. These two angles, these vertical opposite angles are always equal. They are always equal. ये याद रखना है, ये दो एंगल जो हैं बनते हैं, क्रॉस में बनते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये दो एंगल जब हम लाइन्स डालते हैं ऐसे पैरेलल एंड नॉन पैरेलल, अगर हम इस तरह दो लाइन्स डालेंगे, इनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। पैरेलल लाइन्स दरमियान इसकी अगर देखेंगे, बच्चों को कैसे कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन्स है, इनकी डिस्टेंस देखनी है। अगर ये डिस्टेंस जितनी यहाँ पर है, जितनी दूर ये एक दूसरे से यहाँ पर है, अगर इतना यहाँ पर भी है, या हम नजर से देखेंगे अगर ये एक दूसरे के सीध में है, अगर इनको प्रोड्यूस करेंगे और ये किसी जगह इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। तीसरे तरीके से हम भी डाल सकते हैं। इंटरसेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये चांसेस हैं कि अगर इनको प्रोड्यूस करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेंगे, इनको नॉन पैरेलल लाइन्स कहते हैं। नॉन पैरेलल लाइन्स, नॉन पैरेलल लाइन्स, दीज टू लाइन्स। यानी ये अंदाजा लगाना है, यहाँ की डिस्टेंस देखनी है ज्यादा है और यहाँ की डिस्टेंस देखनी है तो कम है। यह हमें अंदाजा लगता है कि अगर हम आगे जाएंगे, इनको प्रोड्यूस करेंगे तो ये दो लाइन्स सामने से इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन इनको हम इंटरसेक्ट लाइन नहीं कहेंगे, इनको हम नॉन पैरेलल लाइन्स कहेंगे। तो हमें इसके आगे और एक बात पढ़नी है कि अगर हम ट्रांसवर्सल डालेंगे इन पैरेलल लाइन्स पर या इन नॉन पैरेलल लाइन्स पर, वहां पर नए जो पियर्स ऑफ एंगल आते हैं। इस लेसन में हमने जो पियर्स ऑफ एंगल्स देखे हैं, तकरीबन 5 किस्म हमने पढ़े हैं। एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा है, लीनियर पेयर एंगल पढ़ा है, कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े हैं। और यहाँ पर मैंने दिखाया है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इसके आगे भी बहुत सारे किस्म बनते हैं, तकरीबन और 5 किस्म बनेंगे, लेकिन इस वक्त टाइम इतना ही है। इंशाल्लाह मैं कल जरूर आपको दूसरा और लेसन दे दूंगा जिसमें वो अदर पियर्स जो हैं, ये एंगल्स हैं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये एक्सप्लेन होने से ये हमें क्या बनेगा कि जो एक्सरसाइज दी हुई है इस यूनिट में वो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम ये समझेंगे कि ये पियर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वक्त खुदा आपको सलामत रहे, बाकी वसल्लम।